آپ دیکھیے کہ مطلب آپ سوچ سکتی ہیں کہ اس قدر اسلحہ برآمد ہوا کراچی سے اور وہ مسلسل برآمد ہوتا جا رہا ہے، اور جو ابھی آخری چنک جو انہوں نے اسلحے کا پکڑا ہے اس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ دیکھیے ایگزیکٹلی انڈیا از ورکنگ ان سچ اے بیڈ مینر اگینسٹ پاکستان کہ وہ میرا خیال ہے دشمنی کی بھی تمام حدیں وہ کراس کر گئے. بالکل صحیح. آپ ان کی انوالومنٹ دیکھیں، آپ جس طریقے سے الطاف حسین اس کے جتنے لوگ ہیں ہاں دے ور سینٹ ٹو انڈیا، اس میں تو پروو ہوا ہے. وہاں پہ انڈیا کے جو را کے لوگ تھے انہوں نے ان کو ٹرین کیا ہے، ان کو فنڈ کیا ہے، ان کو ویپنز دیے ہیں، اور فیوچر میں کہتے ہیں کہ خدا ان کو غرق کرے جو اس طرح کا سوچتے بھی رہیں ہمارے ملک کے بارے میں. کہ یہ تو ہوا اس طریقے سے ہے کہ جب آپ نے ضرب عضب شروع کیا اور ضرب عضب کا دائرہ آپ نے پورے ملک کے اندر پھیلا دیا، خیبر پختونخوا سے آپ نے ان کو کلیئر کیا، آپ نے بلوچستان میں جس طریقے سے کام کیا، سول حکومت نے اور ملٹری نے آپس میں مل کے ایف سی اور پولیس جو تھی بلوچستان کی، جس نے اس کمبینیشن کے ساتھ دیکھیں دو چیزیں آتی تھیں. فورس کا استعمال انہوں نے کم سے کم رکھا، لوگوں کو انہوں نے ڈیفینیٹلی کہا جی کہ ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں، آپ اپنے ہتھیار پھینکیں. فراری بیچ میں آئے، انہوں نے ہتھیار بھی پھینکے. ہاں کچھ شکایتیں ابھی لوگوں کو بلوچستان حکومت سے ہیں کہ بلوچستان حکومت نے جس طرح ان کو پیسے دینے چاہیے تھے پرابلی انڈر ہینڈ وہ چیزیں چل رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ بہت ایکٹیو رول پلے کر رہے ہیں، اور ایون وہاں صدرن کمانڈ کے جو کمانڈر ہیں جنرل ریاض، ہی ٹو از پلئنگ ویری ویری ایکٹیو رول. یہ ان دونوں کی ذمہ داری آتی ہے کہ اگر وہاں کے فراری جن کی کچھ شکایتیں ہیں ان کو پرومس کر کے ہتھیار پھینکوائے گے، ان کو پیسے نہیں ملے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تحقیقات کرنی چاہیے، اور جتنے بھی لوگ تھے ہاں ان کو پیسے ملنے چاہیے. اچھا اوکے، اس کے بعد کیا ہوا؟ یہی کچھ انہوں نے کراچی کے اندر کیا ہوا تھا. کراچی کو ایم کیو ایم کو انہوں نے بیسیکلی انڈیا نے ہاتھ رکھا ہوا تھا، را نے ہاتھ رکھا ہوا تھا، اور انہوں نے اتنا اسلحہ جو تھا، وہ لوگ کہتے تھے کہ ہاں اسلحے کا اتنا انبار وہاں پہ کراچی میں لگا ہے، تو دین واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن؟ تو اب وہ سچویشن سامنے آ گئی ہے کہ جہاں پر وہ انڈیا کا وہ جو اس مکروہ چہرہ ہے، جو اس کے مکروہ عزائم تھے پاکستان کے بارے میں، وہ ساری دنیا کے سامنے آ گئے. وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ بالکل لیکن مکروہ عزائم کی آپ نے بات کی اور دنیا کے سامنے آنے کی بات کی ہے. برطانیہ کے حوالے سے بھی سٹیٹمنٹ ہے، اس نے بھارتی انتہا پسندوں کی مخالفت کی ہے، روس نے مخالفت کی ہے، چین نے مخالفت کی ہے. اب آپ کو لگتا ہے کہ بھارت نے جو ایک خوبصورت سفارتی چہرہ اپنا پیش کیا تھا وہ بھی کہیں نہ کہیں داغدار ہونے لگا؟ نہیں، تھوڑا سا تو دیکھیں انڈیا کو سیٹ بیکس ملے ہیں. پہلا جو ان کا مودی کا یا انڈین گورنمنٹ، دیکھیں یہ اب سے کام تو نہیں چل رہا تھا نا، یہ تو کئی سالوں سے چل رہا تھا. اور را کا جو تعلق واسطہ تھا الطاف حسین کے ساتھ، وہ تو 94-95 سے چل رہا تھا. یہ تب سے سلسلے جڑے ہوئے، تب سے ان کو پیمنٹ ہو رہی تھی ساری. سو یہ جس کو کہتے ہیں نا ایک گریٹر ایجنڈے کے اوپر جو ہے وہ انڈیا یا را کام کر رہی تھی اگینسٹ پاکستان، اور اس کے اندر ان کا منصوبہ ایگزیکٹلی کہتے ہیں کہ وہی تھا جو کہ 71 کے اندر مکتی بہانی کے رول کے اندر انہوں نے کراچی میں لوگوں کو لے کر آنا تھا. بالکل ٹھیک. صحیح. کہ بلوچستان میں انہوں نے لوگوں کو شہ دی ہوئی تھی، بلوچستان کے اوپر وہ ابھی بھی فوکس ہیں. کراچی میں جب 2-2.5 لاکھ یا 2 لاکھ بھی کر لیں، 1 لاکھ بھی اگر مسلح جتھے ویپن لے کے اگر آ جاتے ہیں، تو آپ یہ بتائیے نا کہ فوج آپ کی خارجی محاذ پہ لڑے گی یا داخلی محاذ کے اوپر لڑے گی؟ بالکل ٹھیک ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا کریڈٹ جو ہے وہ جنرل راحیل شریف کو جاتا ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے ضرب عضب شروع کیا. اور یہ ضرب عضب میں آپ سے ایک اور چیز بھی بتا دوں، یہ انہوں نے تب شروع کیا تھا جب ہماری وفاقی حکومت نے مذاکرات کا ڈول ان طالبان سے ڈالا ہوا تھا کہ جو پاکستان کے اندر قتل و غارت گری میں ملوث تھے، اور ان کے پیچھے بھی بیسیکلی را کام کر رہی تھی. انہوں نے کون سی جگہ ایسی تھی جہاں وہ نہیں چھوڑی تھی، جہاں انہوں نے بم دھماکے نہیں کی، جہاں انہوں نے سوسائڈ بومبنگ نہیں کی. اب ہم کس لیے ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے؟ سو دیٹ واز دی ٹائم جون 2014 کے اندر جب آپ نے ضرب عضب شروع کیا جنرل راحیل شریف نے، مسلح افواج نے. تو آپ دیکھیں کہ آج 2.25 سال کے بعد پورا پاکستان ایک اپنے آپ کو بہت مختلف حالت کے اندر پاتا ہے. صحیح. آپ کبھی سوچ سکتی ہیں کہ ہاں یہ جو ہمارے حکمران تھے وہ ٹو بی ویری آنیسٹ کہ وہ لوگ جن کو آپ طالبان کہتے تھے ان سے وہ ڈرتے تھے، اور ایسا لگتا تھا کہ ان کو ایک وہ قوت تسلیم کر چکے تھے کہ نہیں، ہم ان سے بات کیے بغیر، ان کی ہیجمنی تک ایکسیپٹ کیے بغیر ہم آگے نہیں چل سکتے. بالکل ٹھیک. تو میں سمجھتا ہوں دیٹ واز دی ٹائم جب
मुसल्लह अफवाज बीच में आई हैं, आपके रेंजर्स वाले आए, आपके एफसी वाले आए, आपके पुलिस वाले आए, और जब इन सब ने यकजा होकर ऑपरेशन करना शुरू किया, सी अल्हम्दुलिल्लाह टुडे वी स्टैंड मच बेटर टुडे। ठीक हो गया। लेकिन इस हवाले से जनरल राहील शरीफ का स्टेटमेंट ये है कि हम जितनी जंगें जीत रहे हैं या जितनी कामयाबियां हम हासिल कर रहे हैं दहशतगर्दी के खिलाफ, उसे जब तक अंदरूनी तौर पर स्टेबल नहीं किया जाएगा, हालात को उसे यकीनी नहीं बनाया जाएगा, उसका तसलसल बरकरार नहीं रखा जा सकता। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? हमारे सियासतदानों को अब तो किरदार अदा कर लेना चाहिए, अब तो सोच लेना चाहिए ना, सिर्फ फौज को तो कुर्बानियां नहीं देनी ना। अब मैं दो चीज़ों के आपको जवाब दूंगा। पहले जो आपने बात की मैं उसके जवाब देता हूँ। ऐसा लगता है कि जो ये प्रेजेंट हुकूमत है इसकी जैसी बेतहाशा मजबूरियां हैं और वो किसी स्टेज पे जाके कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं। ठीक है। पहले मैं आपसे ये बता दूं कि करप्शन की हम बात करते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी कहा था करप्शन और क्राइम्स, करप्शन टेररिज्म, ये सारे इकट्ठे चल रहे हैं। पैसे का जो लेन देन होता है और वो पैसा जो कि करप्शन का होता है, जब वो टेक प्लेस होगा तो दैट इज द टाइम के जहाँ पे जराइम भी होंगे। बिल्कुल ठीक है। अब करप्शन भी हो गया, क्राइम भी हो गए, टेररिज्म भी हो गया और साथ उसके पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व हो गई। ये सारी चीज़ें जब गड़बड़ हो जाती हैं ना, तो फिर वहाँ पर वो जो सियासी अकाबरीन होते हैं, वो मेरा ख्याल है उनसे जिस तरह उनको एक, जिसको कहते हैं कि एक स्टेट्समैन की हैसियत से जो आपको फैसले करने चाहिए वो फैसले नहीं कर सकते और वो फैसले नहीं कर पाए हैं। आज कुछ भी आप कह लें, 2 साल होने को आ रहे हैं, नेशनल एक्शन प्लान पे जिस तनदही के साथ आपको मन्नोन अमल करना चाहिए था और वो काम सूबाई हुकूमतों के और मरकजी हुकूमत के और मरकजी बैंक के करने का था, उन्होंने जिस तरीके से काम करना चाहिए था वो काम नहीं किया। एक तो ये फर्क पड़ गया। मैं तो यहां तक भी कहने को तैयार हूं कि अगर पीपल्स पार्टी की करप्शन और उसी तरह MKM का जो असलहा पकड़ा गया और सारा कुछ हो गया, नवाज शरीफ साहब इन सब चीजों को सरफे नजर करने पर तैयार हैं अगर ये इनके साथ कंप्रोमाइजिंग मोड के अंदर जाते हैं। एक तो ये आ गई सामने। अच्छा, अब ये देखें, अब आपसे मैंने जो बात की इतनी पिछली सारा एक्सप्लेन किया ज़रब अज़्ब का भी, तो आप मुझे बताइए कि नो आई फील के जनरल राहील शरीफ, उन्होंने 40 साल से ज़्यादा सर्विस की है पाकिस्तानी फ़ौज के अंदर। उन्होंने पाकिस्तान को टू बी वेरी ऑनेस्ट एक नया तशख़्ख़ुस दिया है, एक नई पहचान दी है, और फौज को भी जिसको कहते हैं ना एक नई विजन, एक नया वलवला, एक नया अज़्म और एक नया रोल दिया है। और आज आप ये कह सकते हैं कि हाँ, नो ही डिजर्व्स कि अब उनको जिसको कहते हैं कि हमें खुदा हाफिज कहने का वक्त आ गया है। तो बजाय इसके कि हम उनका शुक्रिया अदा करते हुए अच्छे तरीके से हम उनको खुदा हाफिज कहें, तो बीच में आप ही के प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर अच्छा, जब आपको लगता है कि ये तसलसल बरकरार रहेगा कामयाबियों का? बहुत जबरदस्त अचीवमेंट्स थी अब ये तसलसल बरकरार रहेगा आपको लगता है? इंशाल्लाह ये इसलिए बरकरार रहेगा कि देखिए, एक जो कमांडर होता है ना जी, और कमांडर वो जो सेल्फ सेंटर्ड नहीं होता, जो मुल्क के लिए काम करता है, अपनी फौज के लिए काम करता है। अब आने वालों के लिए टारगेट मुश्किल हो गया ना, क्योंकि एक ऐसा गोल सेट हो गया ना। नो व्हाट आई से, जो उनकी टीम ट्रेन की है उन्होंने, अच्छा, जो उनके आसपास के जो कमांडर्स हैं वो जो थे, मतलब जब वो आए तो मे बी दे वर ब्रिगेडियर और मेजर जनरल और देन प्रोमोटेड टू लेफ्टिनेंट जनरल। तो ये सारी टीम वो है जो कि जनरल राहील शरीफ के अपने हाथों की टीम है, और वो अंडरस्टैंड इस सारी चीज को करते हैं। जो सवाल आपने किया ना, यही सवाल उन 3 स्टार्स के माइंड के अंदर मौजूद है। इफ दे आर गिवन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिप्लेस जनरल राहील शरीफ, तो उनके लिए इट्स अ वेरी टॉल ऑर्डर जो कि उन्होंने उसको पूरा उतरना उसके ऊपर। और मैं समझता हूं कि जनरल राहील शरीफ अपने आने वाले चीफ के लिए बहुत बेहतर इन्वायरमेंट छोड़ के जा रहे हैं। सही, दुनिया की बेस्ट फौज, एक मैं समझता हूं कि बहुत बेस्ट टीम जो है वो फौज छोड़ के जा रहे हैं, और जिसको कहते हैं बैटल हार्डन टीम जो है वो उस जनरल के लिए छोड़ के जा रहे हैं। तो ही शुड बी वेरी कंफर्टेबल और उनको उसी तरीके से चलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बात आ जाती है जमहूरी हुकूमत की, जमहूरी रवैयों की। जब आप इंफॉर्मेशन जो है एक अखबार के अंदर आप लीक नहीं करते, आप फीड करते हैं, तो मैं समझता हूं कि बिफोर जनरल राहील शरीफ लीव्स, बिल्कुल ठीक है, ये जो कुछ इस जमहूरी हुकूमत ने किया है, और अगर इन्होंने नहीं किया, इनके किसी शख्स ने किया है, किसी वजीर ने किया है, या उनके घर से किसी तरीके से हुआ है, तो हाँ, उसको डेफिनेटली आई वुड से के जिम्मेदार। 5 नाम भी दे दिए उन्होंने, कहा कि ये 5 नाम है। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। ना सिर्फ ये कि उनको जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए,
उनसे पूछगछ करना भी जरूरी है और उनको टू बी वेरी ऑनेस्ट, हाँ, उनकी जो सजा बनती है वो सजा के हकदार ठहरते हैं। हकीकत में मैं आपसे बताऊं, और एक सिर्फ कहूंगा, दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता कि एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, आपके मुसल्लह अफवाज के कमांडर ने इतनी जबरदस्त खिदमत दी हों और जाते हुए भी आप उसको मलायन करने की कोशिश करें, जाते हुए भी उसको एम्बैरस करने की कोशिश करें, और आपकी अपनी गलतियां हैं, आपकी अपनी फॉरेन पॉलिसी कोई नहीं है, आपकी अपनी कश्मीर पॉलिसी को जिस तरीके से इनको परसू करना चाहिए था वो उनकी कश्मीर पॉलिसी कोई नहीं है। यू डोंट हैव अ फुल टाइम फॉरेन मिनिस्टर, और आपका फॉरेन सेक्रेटरी उठ के खड़ा होता है एंड देन इसके बाद वो देखें सारी जो स्टोरी है वो फैब्रिकेटेड स्टोरी कह लें या एक्चुअल में सारी बात हुई है, वो सारी चीजें आप सामने लेकर आते हैं। इसी के साथ आप कंपेयर करें, क्या इंडिया के अंदर आरएसएस वाले नहीं है? इसके बाद उनके साथ जो दूसरे और जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू तंजीमें हैं, क्या उनके साथ काम नहीं कर रही हैं? वो उसी तरीके से काम कर रहे हैं। वेयर एज जिनके बारे में मैं उनका नाम नहीं लूंगा, जिनके बारे में इस न्यूज के अंदर भी बात की गई थी, उनको तो 2004 के अंदर आप बैन कर चुके हैं। वो तो किसी किस्म का कोई रोल प्ले नहीं कर रही, और अगर वो करते भी हैं तो जिम्मेदारी किसकी आती है? आप तो चाहते ही नहीं कि पंजाब के अंदर या सदर्न पंजाब के अंदर रेंजर्स आके ऑपरेशन करें। नो, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ दिस गवर्नमेंट कि ये चाहते हैं कि कराची के अंदर रेंजर्स काम करती रहे, एफसी काम करती रहे, बलूचिस्तान के अंदर केपीके में भी इवन एफसी काम करते रहे, लेकिन यहां पर चाहे इनकी नाअहल पुलिस हो, वो आपने अंदाजा लगा लिया था जब उन्होंने एक डकैत को पकड़ा था, 12-15 लोग थे, पूरे सूबे की पुलिस उसको नहीं पकड़ सकी थी, छोटू गैंग को, और उसके बाद आपको आर्मी को बुलाना पड़ा। तो ये तो उनकी एफिशिएंसी है, ये तो उनकी एफिकेसी है, ये तो उनके आई से ऑपरेशनल प्रिपेयरनेस है जो यहाँ की पुलिस की है। तो ये इसी तरीके से उन्होंने पर्दे डाले हुए हैं और अपनी जिम्मेदारी को निभाते नहीं है और वो कीचड़ दूसरों के ऊपर उछालने की कोशिश करते हैं। यानी तब तक अच्छा लगता है जब तक दूसरों का हो, जब अपनी बारी आती है। जी बिल्कुल। अब अगला सवाल आपने कहा जी कि इंडिया के बारे में, इंडिया ने जितना प्लानिंग की हुई थी, जितना वो सोचा हुआ था पाकिस्तान को मलाइन करने के लिए, पाकिस्तान को मुलव्वस करने के लिए, मुतव्वन करने के लिए, वो सारे मंसूबे उसके ऊपर उल्टे हो गए हैं। और याद होगा, आज से चंद माह पहले की बात है, मैंने आपसे कहा था कि मोदी का चेहरा अब दुनिया के सामने आना शुरू हो गया है एंड इट्स अ वेरी वेरी हीनियस फेस, और वो इंडिया को एम्बैरस करेगा पूरी दुनिया के सामने। ना सिर्फ ये कि उसने इंडिया को पूरी दुनिया के सामने एम्बैरस किया है, बल्कि वो लोग जो इंडिया के अंदर अपने आप को समझते थे कि वी आर वेरी सेफ इन दिस कंट्री फॉर इन्वेस्टमेंट, उन्होंने सोचना शुरू कर दिया है कि अगर ये एक्सट्रीमिस्ट हिंदू तालिबान जो हैं, अगर वो हुकूमत कर रहे हैं इंडिया के अंदर और वो हर वक्त जंग की बातें करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक्स की बातें करते हैं, कश्मीरी वहां पर उठ खड़े हुए हैं, और कश्मीरी बैठने वाले नहीं हैं। ये उनकी इंडिजिनस मूवमेंट है, इंतकाजा की मूवमेंट है, उन्होंने तहिया कर लिया, उस नौजवान नस्ल ने भी और तमाम कश्मीरियों ने ये तहिया कर लिया है कि ना उन्होंने इंडिया के साथ रहना, ना उन्होंने मोदी के साथ रहना है। बिल्कुल।